Hello students, as per our syllabus in radioactivity, in our previous class we have studied radioactive decay law and half-life. Today we will study the mean life of radioactive element. What do we mean by mean life as per our syllabus? So it's a very easy topic in radioactivity, but has a great importance in radioactivity. What is this? We know that the radioactive decay law is n equal to m naught e to the power minus lambda t, which we have proved in our previous lecture, where what is n? N is number of radioactive nuclei present at time t. Now at time t equal to 0, n equal to n0, where n0 is initial number of nuclei to be decayed, and at t equal to infinity, n equal to 0. What does it mean? That is, it will take infinite time for complete disappearance of radioactive nuclei. Since the radioactive decay process is statistical, it is a statistical process. What do we mean by statistical process? It means that we do not know which nucleus is going to decay next. Suppose a nucleus decayed, then who will decay the next? It cannot be known. And individual nuclei may have lifetimes anywhere from 0 to infinity. माने कोई भी डीके के पहले उसका कोई पूछा जाए कि उसका लाइफ टाइम क्या है, तो उसका जवाब यही होगा कि उसका लाइफ टाइम 0 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कौन न्यूक्लियाई डीके करेगा पहले कौन बाद में, इसको जानने का कोई तरीका अभी तक नहीं है. Therefore we define the, इसीलिए एवरेज लाइफ या मीन लाइफ को डिफाइन करने का एक पॉइंट आया. Therefore we define the average lifetime, और इसी को कहते हैं मीन लाइफ टाइम और only lifetime of a nucleus. The mean lifetime of a radioactive nucleus is the average time it survives until it decays. किसी भी न्यूक्लियस के एवरेज टाइम क्या है? Until it decays, उसी को हम कहते हैं मीन लाइफ या एवरेज लाइफ. Let out of n nuclei present at time t, a small number dn decays immediately, that is within the time t and t plus dt, that is within the time t and t plus dt. क्या कहा हमने? Let out of n nuclei present at time t, a small number dn decays immediately, that is within the time t and t plus dt. If dn nuclei undergo disintegration in time dt, then each of these dn nuclei have a lifespan of about t. Therefore, combined age of all dn nuclei is tdn. Therefore, combined age of all dn nuclei is tdn. Hence, total life of all nuclei क्या होगा? या जैसा लिखा हो उसी से सब क्लियर है. टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू n नॉट, क्योंकि n नॉट इनिशियल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, 0 से n नॉट tdn. And mean life is defined as the sum of lives of all nuclei divided by the total number of nuclei. That is mean life, इसको हम डिनोट करेंगे tau से. The mean life equal to total life of all the nuclei divided by
total number of nuclei initially present. तो total life of all the nuclei यहां पर हम लोग लिखे हैं, इसका वैल्यू है tau इक्वल टू इंटीग्रल 0 to n naught t dn divided by n naught. Let this be equation number 2. Now changing the limits at t equal to 0 and n equal to n0 and at t equal to infinity n equal to 0. लिमिट को हम चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं. Therefore dn by dt becomes minus lambda n and hence dn equal to minus lambda n dt. So according to definition of mean life, this tau now becomes integral over infinity to 0 minus lambda t n dt divided by n0. अब मैथमेटिक्स है पूरा. दिस इज इक्वल टू n का वैल्यू पुट करेंगे इंफिनिटी टू 0 माइनस लैम्डा टी, n का वैल्यू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी dt by n0. दिस बिकम्स 0 टू इंफिनिटी. इस माइनस को अगर हम हटाएंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगा, तो माइनस यहां से हटा दिए तो ये हो गया 0 टू इंफिनिटी लैम्डा टी ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी dt. इंटरमीडिएट में ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सभी कोई पढ़े होंगे. उस फॉर्मूला को अब हम यूज करेंगे. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे किया जाता है वो फॉर्मूला को याद करो, क्योंकि वो इंटरमीडिएट में ही उसको पढ़ाया जाता है, प्रूफ दिया जाता है, उसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ मैथमेटिकली. तो प्रोसेस लिखा हुआ है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट टाउ इक्वल टू, इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे तो ये दो एक्सप्रेशन होगा, नंबर 1 ये वाला और दूसरा वाला ये वाला. ये मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स. सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा. इसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम 0 आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ लिमिट 0 टू इंफिनिटी. और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा टी बाय लैम्डा स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी. दिस नाउ बिकम्स लैम्डा बाय लैम्डा स्क्वायर. लिमिट को बैठाएंगे हम, तो दिस बिकम्स e टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू द पावर 0. सो एक लैम्डा लैम्डा कट गया तो दिस बिकम्स 1 बाय लैम्डा. अब e टू द पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू होता है 0 और e टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो दिस इक्वल टू 1 बाय लैम्डा. यानी कि इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने किया तो इसका आंसर क्या आया? आंसर आया 1 बाय लैम्डा. सिर्फ फॉर्मूला पर बेस करके निकल गया, जो कि इंटरमीडिएट का ही पार्ट है. तो फाइनली व्हाट वी गेट टाउ इक्वल टू 1 बाय लैम्डा. Tau is mean life, lambda is decay constant. So we can say कि thus the mean life is equal to the reciprocal of the decay constant. जो मेरा रिजल्ट आया उसी को वर्ड्स में लिख दिए, कोई नया चीज नहीं, कोई फिजिक्स नहीं है यहाँ पर. If t equal to tau, मतलब टाइम को हम अगर मीन लाइफ मान लेंगे और टाउ का वैल्यू होता है 1 बाय लैम्डा. In the decay law n equal to n0 to the power minus lambda t. मान इस t के जगह हम टाउ बैठाएंगे तो what we will get? We get nt equal to n0 1 by e. This is approximately equal to 1 by e का approximately value है 0.37 n0. इसका मतलब क्या है? 37% of the n0. इसी को कंक्लूजन में लिख दे रहे हैं. The mean life is the time interval in which number of nuclei left n becomes 1 by e times, कहें या कहें 0.37 times या कहें 37% of the original number of nuclei n0. यह भी एक मीन लाइफ का डिफिनीशन हुआ.
इन अदर वर्ड्स इट इज द टाइम, दूसरे शब्दों में इसी को हम कहें तो क्या कहेंगे, इन अदर वर्ड्स इट इज द टाइम in which number of decayed nuclei n0 minus n, this is the number of decayed nuclei, become 1 minus 1 by e times, और 1 minus 1 by e का वैल्यू हो जाएगा 0.63, तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, और 0.63 टाइम्स और 63% ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0। दो तरह से यहां पर मीन लाइफ का डिफिनीशन होगा। अब कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन में यह पूछा जाता है, एक ही नंबर का क्वेश्चन इन जनरल रहता है या कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ, क्या होता है रिलेशन इसका, और यह रिलेशन हम न्यूमेरिकल में भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम यहां पर लिख रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ। कैसे निकालेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रॉम टी हाफ का वैल्यू हाफ लाइफ, जिसको कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, प्रूफ किए थे 0.693 बाई लैम्डा, एंड टाउ बराबर मीन लाइफ अभी प्रूफ किए हैं 1 बाई लैम्डा। इसके बाद यहाँ स्टार हम दिए हैं, इस स्टार का मीनिंग यहाँ पर है, माने इसके बाद हमें यहाँ पर आना है, यहां से यहां आना है। क्या लिखेंगे इसके बाद, बी है, ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो टाउ बराबर टी हाफ बाई 0.693, और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1.44 टी हाफ, यानी कि मीन लाइफ इज इक्वल टू 1.44 टाइम्स टी हाफ। इसी को वर्ड्स में क्या कहेंगे, वर्ड्स में कहेंगे, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ, दिस इज द रिलेशन, मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ रिलेशन, यही है। और इसको वर्ड्स में कैसे कहेंगे हम, कि दस द एवरेज लाइफ या मीन लाइफ इज लॉन्गर, टाउ का वैल्यू इतना टाइम्स हाफ, तो इसका वैल्यू क्या होगा, दस द एवरेज लाइफ इज लॉन्गर देन द हाफ लाइफ बाई ए फैक्टर, हाउ मच, 1.44। This is all about our today's class, and in our next class we will study alpha decay. Thank you very much.